evening, ma'am. How are you? Good evening, sir. I'm pretty well. Thank you for asking. And what about you? Yeah, I'm also quite well. And after a long time, we are going to do second session because I think more than 6 months we had one session, right? Yes, yes. Yeah, absolutely. Okay, so I want to know about little how is it going on about your channel, about your journey. Yes, my channel going little bit good. Yes, I can say. And my Okay, that journey is. also going little bit monotonous because I'm not able to do more practice nowadays because I'm doing another job now. So that's why. Hmm. But I'm trying Hmm. to connect with one person, at least one person one day. Hmm. So as we have decided today for the rapid fire, so we can go for the rapid fire, right? So are you ready for Yes, it? yes, yes. I try my best. Okay, so I'm going to ask you first tenses, then model, and then few another sentences. Mm-hmm. Okay. Okay. तुम कहाँ जा रहे हो? Okay. I'm going to Where are ask you you Hindi. going? You have to speak. Yeah, yeah. Okay. तुम क्या करते हो? What are you doing? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. You have to go to school. You should go to school. You should तुम्हें go to स्कूल school. तुम्हें स्कूल जाना है. You have to go to school. Hmm. मैं तुमसे बात करूंगा. I will talk to you. थोड़ा सा खिसक जाओ. Uh, इससे जाओ. Uh, Move little More bit or side. shift. Yeah, right. More side. हम्म. वह व्यक्ति जो कल तुम्हारे साथ था कौन है? वहाँ. वह व्यक्ति कल जो तुम्हारे पास था वह कौन है? Oh, yesterday. Yesterday, someone with you. Who's that person? Someone with you is that person. Okay. मैं बाजार जा रहा हूँ. I'm going to market. क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? Do you speak English? क्या तुम अंग्रेजी लिख सकते हो? Do you write in English? कैन यू? क्या तुम Can, क्या तुम खाना बना सकते हो? can you make food? हम्म, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? Could you? Could you? ब्रिंग. Could you take me water? One of glass. कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? और Oh, टेक भी yes. लगा Could you? सकते हो. मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ. I can bring one of glass water. वन ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू. One glass of water. तुम कहाँ रहते हो? Where you are living? वेयर डू यू लिव? Where do you live? मैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में रहता हूँ. I live in Delhi, Connaught Palace. आई लिव एट कनास पैलेस इन दिल्ली. ये भी हो सकता है. Oh, yes. ओके. मैं 12वीं का एग्जाम देने वाला हूँ. I'm going to do exam. I'm going to do 12th standard exam. डू या टेक या एपियर भी आप लगा सकते हो. ओके. मेरे पास एक कंप्यूटर है. I have one computer. मेरे पास एक स्कूटर है. I have one scooter. यह स्कूटर मेरे पास 2 साल से है. This scooter I have for 2 years. I have had this scooter for 2 years. I have had. This scooter for 2 years. How can you explain? How had? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है. तो अभी मेरे पास है. मैं कोई समय नहीं लगा रहा हूँ. तो आई हैव अ मोबाइल फोन. और जब मैं कह रहा हूँ समय लगा कि मेरे पास ये मोबाइल फोन 1 साल से है.
तो आई हैव So I हैड दिस मोबाइल फोन फॉर 1 ईयर। अगर मैं ये कह दूं कि ये मोबाइल फोन मेरे पास 1 साल से था, पास्ट में ही खत्म हो I had जाएगा। had. आई हैड हैड दिस मोबाइल फोन फॉर 1 ईयर्स, राइट। ऐसा लगता है वह पागल है। I'm thinking. Who's pagal? Sorry. Please again ask me. हाँ, ऐसा लगता है वह पागल है। Uh, I thought. I thought he's मैड, mental mad. मेंटली मैड। सो आई थॉट की जगह आप लगा सकते हो ही सीम्स टू बी मैड। Oh, okay. ही सीम्स टू बी मैड, ऐसा लगता है कि वह Seems to अमीर है। ही सीम्स टू बी रिच, ऐसा be लगता है rich. कि वह गरीब है। ही सीम्स टू बी पुअर। Seems. He सीम्स, seems to be. सीम, Seems. सीम्स, Seems. सीम, हाँ, एस डबल एम, राइट। Seems. अगर अगर इसको पजेशन में बोलना हो कि ऐसा लगता है कि उसके पास एक लैपटॉप है, ही सीम्स टू हैव अ लैपटॉप। ऐसा लगता है कि Okay. उसके पास 1 लाख रुपया है, ही सीम्स टू हैव 1 लाख रुपीज। वह बीमार है। Uh, I I seems no. ही सीम्स, ऐसा लगता है मतलब उसके लिए है। He seems he's ill. ही What? सीम्स टू बी इल। Okay. He seems to be ill. हम्म हम्म तुम मुंबई जा सकते हो? This is question. हम्म तुम मुंबई Can जा you सकते go? हो? Okay. Can you go to Mumbai? हम्म यस, मैं मुंबई जा सकता हूँ। Yes, I can go to Mumbai. तुम्हें इस समय पार्टी में होना चाहिए। Okay. Now you have to in party. तुम्हें Or इस no, you समय should पार्टी में होना चाहिए। यू not शुड say बी इन द now पार्टी। you should be in the party. और कल तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था। चाहिए था. Okay. You should had to in the party yesterday. यू शुड हैव बीन इन द पार्टी यस्टरडे। होना चाहिए था no. होना चाहिए था। Okay. तो जो यहाँ पर यू शुड बी इन द पार्टी हो रहा है, वही यू शुड बी उठा के बीन बनेगा। यू शुड हैव बीन इन द पार्टी। Okay. You should be in the ओके। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। You should have one laptop. और तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। You should have been one laptop. अब Not देखिए, you should बीन था होना वो, चाहिए. You should बीन have. था वो। You हाँ, वी शुड हैव हैड वन लैपटॉप। should have बीन had स्टेट one ऑफ laptop. बीन स्टेट ऑफ बीन के लिए है, और हैव हैड ये पोजीशन के लिए है। तो तो यहाँ पर एक पोजीशन को पार्टी में होना चाहिए था. So there you should have been party. And तुम्हारे पास वो लैपटॉप होना चाहिए था. कल तुम्हारे पास देख, लैपटॉप होना चाहिए. आई गॉट इट योर क्वेश्चन, लिसन टू मी केयरफुली। देखिए, पूरी इंग्लिश में 3 चीज अगर अच्छे से समझ जाओ तो सब कुछ आसान हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन। देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ना ही इसमें कोई पोजीशन है कि तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो जब कोई चीज होने की बात आती है तो वो एक पोजीशन है। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, या तुम्हारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो एक पोजीशन है। तो यहाँ पर हमेशा जहाँ पर पोजीशन होगा वहां पर हैज, हैव, हैड, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे पोजीशन दिखाने के लिए। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बाजार में होना चाहिए, पार्टी में होना चाहिए, तो ये सब पोजीशन नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तुम्हें बुखार है, तुम गोरे हो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, ये सब क्या है? किसी की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अच्छाई बुराई बता रहे हो। तो ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। वहां पर आप इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, ये सब लगेगा, राइट। और अगला होता है जहां पर एक्शन पाया जाता है। एक्शन जहां पर कार्य को दर्शाया जाता है। वह जाता है तो जाने का कार्य हो रहा है, खाता है तो खाने का कार्य हो रहा है,
वो मिठाई खा रहा है तो मिठाई खाने का कार्य हो रहा है, लैपटॉप चला रहा है तो चलाने का कार्य हो रहा है। तो जहां पर कोई कार्य पाया जाता है वो एक प्रकार का एक्शन है। ठीक है। अब जैसे मैं प्रेजेंट के एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें घर में होना चाहिए, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें कोई पोजीशन नहीं है, ना ही कोई एक्शन है। ठीक। तो यू शुड बी इन द रूम। अब मैं कहूँ पोजीशन में कि तुम्हारे पास 100 रुपया होना चाहिए, तो यू शुड हैव 100 रुपीज। ठीक है। तो अभी हो रहा है कि यू शुड बी इन द रूम, और अगर मैं पास्ट में कहूँ कि तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन, यही बी जो है बीन बन जाएगा। ठीक है। और जो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप, क्योंकि शुड हैव के बाद में तुरंत थर्ड फॉर्म आता है जब पास्ट में जाते हैं तो। राइट। ऐसे बनेगा। जैसे मैं ये कहूं कि तुम्हें पार्टी में बहुत सारी मिठाइयाँ खानी चाहिए थी, तो ये एक्शन हो गया, ना तो ये पोजीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास पैसा कंप्यूटर होना चाहिए, ना ही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पार्टी में बाजार में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कार्य करते रहना चाहिए। तुम्हें पार्टी में बहुत सारी मिठाइयाँ खानी चाहिए थी, तो यू शुड हैव टेकन लॉट ऑफ स्वीट्स। अब देखिए यू शुड हैव के बाद टेकन आया, तो जहां पर एक्शन है V3 में टेकन यूज हुआ। ठीक है। और पोजीशन वाले में हैड यूज हुआ, और स्टेट ऑफ बीइंग वाले में बीन यूज हुआ। तो ये डिफरेंट है। यू शुड हैव टेकन लॉट ऑफ स्वीट्स इन द पार्टी या लास्ट नाइट। राइट। ये डिफरेंट है। जैसे ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि इस समय तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो सकता था या हो सकता है। सो अब चूंकि हो सकता है, यहाँ पर कैन वाली और कुड वाली दोनों फीलिंग आ रही है। सो यू कुड हैव अ लैपटॉप, यू कुड हैव अ लैपटॉप, कुड के बाद में हैव आया है पोजीशन दिखाने के लिए। जब पास्ट में जाएंगे, तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो सकता था, हो सकता था, तो यू कुड हैव, कुड के साथ हैव आएगा, क्योंकि कुड पास्ट में जाने पर हमेशा मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म। सो यू कुड हैव हैड अ लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप हो सकता था। राइट। जैसे कंडीशनल 3 की बात किया जाए, कंडीशनल 3 क्या कहता है? पास्ट के लिए कोई भी रियलिटी को फैक्ट दर्शाता है कंडीशनल 3। जैसे यदि मेरे पास कल एक लैपटॉप होता, यदि मेरे पास कल एक लैपटॉप होता, तो मैं मीटिंग गया होता। यदि कल मेरे पास एक लैपटॉप होता तो मैं मीटिंग गया होता। तो ये रियलिटी है, कल एक मेरी मीटिंग थी, और कल मेरे पास चूंकि लैपटॉप नहीं था इसीलिए मैं मीटिंग नहीं गया। तो कंडीशनल 3 हमेशा पास्ट की रियलिटी शो करता है। तो यदि कल मेरे पास एक लैपटॉप होता, तो मैं पास्ट के पोजीशन दिखाता हूं। तो इफ आई हैड अ लैपटॉप यस्टरडे, तो डबल हैड आ रहे हैं क्योंकि पास्ट है और पास्ट का पोजीशन है थर्ड कंडीशनल का। सो इफ आई हैड अ लैपटॉप यस्टरडे, यदि कल मेरे पास एक लैपटॉप होता, आई वुड हैव गॉन। आई वुड आया, वुड के बाद में हैव आया, फिर उसके बाद में थर्ड लगेगा, आई वुड हैव गॉन टू द मीटिंग, या आई वुड हैव गॉन टू अटेंड द मीटिंग। राइट। In this way we can use V3. I've been watching television for 2 hours. और मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे टीवी देखता रहा, कोई काम मैं दिखा रहा हूँ कि एक्शन में रहा। कीप ऑन, केप्ट ऑन आपने सीखा होगा, तो कीप का आप सेकंड फॉर्म बनाइए केप्ट। आई केप्ट ऑन वाचिंग टेलीविजन फॉर 2 hours. थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजने लगा। After some time, my phone was ringing. देखिए मैं कह रहा हूँ कि फोन बजने लगा, मतलब कार्य शुरू हुआ, तो माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग।
our phone started. Yes, started yes. ringing. Mhm. मैंने फोन को उठाया. I kept the phone I or received picked my pick या received the received phone. phone. I picked the phone. उस तरफ से मेरा दोस्त बोला, क्या तुम बाजार जाना चाहोगे? My friend told me, can you go to market? From Would that you, side, my friend asked me, would like to go to market? would you like to go to market? Yes. I said to my friend, यानी मैंने अपने मित्र से कहा, मैं बाजार शाम के 4 बजे जाऊंगा. I said my friends, I will go To market to market 4 o'clock. at evening, in the evening, at 4 o'clock in the evening. Yeah. So there is will is correct or would? नो विल लग जाएगा. आप इसके साथ में आई एम का यूज कर सकते हो, क्योंकि जहां पर फ्यूचर की कोई भी चीज एकदम फिक्स हो तो वहां से कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट एट 4 o'clock इन द इवनिंग. आई एम भी लगा सकते हो, नहीं तो विल ठीक है, वुड नहीं ठीक होगा, क्योंकि प्लान बना हुआ है तो विल और आई एम से चल जाएगा. अब थोड़ा से स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन तीनों को गहराई से थोड़ा सीखिए, तीनों में डिफरेंट सीखिए, क्योंकि ये हर जगह मिलने वाला है. जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल बोलूं, पोजीशन क्या है? पोजीशन वह है जहां पर आपको किसी चीज पे अधिकार हो. जैसे मेरे पास कंप्यूटर है तो ये पोजीशन, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव स्मार्ट टीवी, आई हैव स्मार्टफोन, आई हैव फेवर. चूंकि तुम्हें बुखार चढ़ा है, तुम्हारे पोजीशन में है, तो ये भी कह सकते हो आई हैव अ फेवर. तो जहां पर ही सिंगुलर के लिए ही हैज अ टेलीविजन, ही हैज 200 रुपीज. तो ये जो जहां पर कोई सामान पाया जाता है ये पोजीशन है. अब पोजीशन के बजाय जैसे एक्शन कहना हो, एक्शन क्या होता है? ओ सॉरी, पहले स्टेट ऑफ बीइंग समझ लो. स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? जहां पर कोई कार्य ना हो, कोई एक्शन ना हो, और जहां पर कोई पोजीशन ना हो, कोई अधिकार ना हो. जैसे वह शिक्षक है, मैं बीमार हूँ, वह इंजीनियर है. इसमें कोई पोजीशन नहीं है, आप किसी की स्थिति बता रहे हो, किसी की अवस्था बता रहे हो. ठीक है. मैं बीमार हूँ, वह स्मार्ट है, वह बहुत ही फेयर है, वह बहुत ही ब्लैक है. ठीक है. और वह छोटा है, बड़ा है, मोटा है. तो ये सब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है. वह घर में है, स्कूल में है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है, जहां पर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो. एक्शन जहां पर कोई आपको कार्य दिखेगा. मैं पानी पीता हूँ, पीने का एक्शन. खाना बनाता हूँ, जाने का एक्शन. एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने का एक्शन. ठीक है. तो ये सब एक्शंस हैं. तो 3 तरह के वाक्य आपको हर जगह मिलेंगे. इनको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये आपको हर जगह मदद करेंगे. जैसे मैंने कहा सिंपल वाक्य, मैंने कहा मेरे पास एक कंप्यूटर, आई हैव ए कंप्यूटर. अब देखो शुड के साथ इसको लगाना है तो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर. आ रहा है कि नहीं? सो हैव. और तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ कंप्यूटर. देखिए यहाँ भी हैव हैड ये सब आया. ये सब तुम्हें हर जगह मिलेगा. जैसे कैन के साथ यूज करना है, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर हो सकता है, यू कुड हैव अ कंप्यूटर. देखो हैव आया, क्यों आया? क्योंकि पोजीशन की बातें हो रही हैं. तुम स्कूल जा सकते थे, तो इसमें एक एक्शन है, तो इसमें कोई ना कोई वर्ब आएगी. यू कुड हैव गॉन टू द स्कूल. तो इसको थोड़ा गहराई से, डीपली से सीखने की कोशिश करो. तो ये हर एक जगह मिलता है, घूम घुमा के यही सब है. अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे तो तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, बोलने में मदद मिलेगी काफी हद तक. Yes, actually last 2 months I'm not doing more practice, and I will be not do practice after 1 month also. I will start my English after 1 month. I will do more focus in July. Yeah. Okay, since July. Okay. So see you in the July next time, and we will try to discuss these are the things. Yes, definitely.